Hello, this is Swapnil here from ASIPM. So in our last video, where do I left was the QA preparation strategy, right? If you haven't checked the last video, do check it, in which I mentioned about a timeline of topics that you need to cover. Okay, in that I mentioned about 24th January to 31st March, right? So this video is going to give you a prior strategy, a proper planning about how to cover each topic and what all things you need to keep in mind. Okay, so this video is going to be again a long video, but if you'll watch it till the end, I'm going to share a short trick to solve a simple question to emphasize over the attempt rate part. Okay, so please do watch it until the till the end. Apart from that, if you haven't checked out our website yet, ASIPM have our own crash course for IPMAT 2021 preparation and 2022 as well. Okay, in this we are providing student specific mock tests, specific course modules, as well as a personalized schedule, and this course is specifically based on a peer-to-peer guidance. So without any overdue, let's focus on the preparation strategy that you wanted to know. Okay, so on the window you must be now looking at an order of topics, right? On the timetable you must have been looking at. This is the first thing that you need, right? What all things you need to study. तो आपको कौन कौन से टॉपिक कब कब खत्म करने हैं वो है इसमें, मैं आपको विंडो पे दिख रहा होगा, डेट्स दिख रही होगी. अब आपको इन सब टॉपिक, मैंने आपको ये जो टॉपिक का ऑर्डर रखा है वो ऐसा क्यों है मैं आगे बताता हूं. बट देन व्हाट डू आई मीन बाय फिनिशिंग अ टॉपिक. तो जैसे एरिथमेटिक में रेशियो प्रपोर्शन जो आप ये 2 दिन के लिए देख रहे हैं, नेक्स्ट 2 डेज के लिए, तो उसमें आपको मेक श्योर करना है क्या कि मैं एटलीस्ट रेशियो प्रपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स विच इंक्लूड्स कंबाइंड रेशियोज, इन रेसिप्रोकल्स का रेशियोज निकालना है तो क्या वेज होती है, उन सब का कॉन्सेप्चुअल रखूं, और उसके साथ साथ मैंने उसके अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. दिस एंड दैट कैन बी डन इन अराउंड 2 hours a day, right? So while preparing for your boards or doing anything else, you can prepare for your IPMAT as well. So giving 2 hours, on the first 2 hours what you can do on the first day, like attend any lecture or attend any topic or watch all the resources, what all you have to solve to check what all the concepts are, and then solve certain 50 number of questions or 40 questions based on these concepts. Now coming back to why I have kept the topics like that. You must have seen in the window that in the first week or first part we have kept the arithmetic, then the algebra, then modern maths, geometry, number system. You must have found people starting with number system, then why I am starting with arithmetic? That's the first question that people have asked me. So the first answer is, isn't that arithmetic is relatively easier, as I mentioned earlier? And you know, IPMAT 2021, or like let's say talk about previous years, there are around 60 questions. If we not talk about the pattern paper of 2020, if we talk about 2019, there were 60 questions, in which 10 to 12 questions were from arithmetic. And not only that, these questions were relatively easier than the rest of the areas. These questions were based on a formula or based on certain simplicity, a simple word problem based, which were doable by the paper test takers or by the who were giving the test. Okay, at the same time, algebra was much easier than the rest of the part. So why do I start with easy? The next question that comes into my head, okay, you started with something, and if I all of a sudden put up a functions questions or a logarithm or certain APGP का सीरीज आपके सामने मैं लॉन्च करता हूँ और आप बोलते हो सर ये तो मुझे आता नहीं है. फॉर समवन, अब 11th-12th का बच्चा तो कर लेगा जो मैथ्स के साथ था, बट सपोज आपको भी करना ही है तो इजी चीज पहले खत्म करो ना. नॉट ओनली इजी, अब देखो ना इनमें क्वेश्चंस कितने कितने, 10 से 12, 10 से 12, 12, 15. सो इफ यू आर एबल टू फिनिश दिस नंबर ऑफ syllabus first week, second week, you can even start giving mocks as well. So हमेशा easy चीजें पहले खत्म करो. So first you will finish arithmetic, then you can finish algebra. आप वो टेबल में देख लोगे, algebra के भी मैंने एक टॉपिक को पूरा स्प्रेड किया है, ठीक है. algebra में ये नहीं है कि quadratic equations ही है, मैंने modulus, inequalities, maximum minima तक को 2-2 दिन दिए, जिसमें specific maximum minima based क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम्स है जो पेपर में आते हैं, ठीक है. तो मॉडर्न मैथ्स, फिर ज्योमेट्री करो. अब देखो द पॉइंट, व्हाई आई केप्ट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, दीस टाइप ऑफ थिंग्स लेयर. ओके, आप अगर टाइम टेबल ऑब्जर्व करोगे तो जितना साइज अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में टोटल 8 सब टॉपिक्स होते हैं. ज्योमेट्री लोग बोलते हैं एक ही टॉपिक है. आप अगर ज्योमेट्री पढ़ने जाओगे तो ज्योमेट्री भी खुद के 8 टॉपिक्स की साइज का है. उसमें ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं ज्योमेट्री में इंक्लूड कर लेता हूं. बहुत वेराइटी है ज्योमेट्री में, एंड दिस इज समथिंग ह्यूज. इसके अंदर फॉर्मूलेस, ये दोनों चैप्टर में फॉर्मूलेस भी बहुत है.
अगर ये आप स्टार्टिंग में याद करोगे तो एंड तक तो आप वैसे भूलने की आदत हो जाएगी ना। एटलीस्ट इनको एंड में रखो और इनसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन टोटल अगर आप देखोगे 30+ क्वेश्चन आर देयर। 30+ क्वेश्चन का कोर्स पहले खत्म हो जाएगा। तो पहले अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, फिर ज्योमेट्री, फिर नंबर सिस्टम, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये वाले भी इजी ही है, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि कोई भी बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उनको ये चीजें इजी लगेंगी, ज्यादा इजी लगेंगी। मॉडर्न मैथ्स इज समथिंग दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, मतलब मॉडर्न मैथ्स में आ जाता है 11th 12th के टॉपिक्स, तो वहां पे आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर 11th 12th में पढ़ा है तो रिवाइज करना होता है मेन, बट देन हर टॉपिक का वही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड देन 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग विल मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट द लेवल 1 of all the topics. आपका level 1 हो गया. Now you can move on. What all things you need to keep in mind while preparing? Okay. Examination के लिए I'll again repeat. एग्जाम में अगर आपको पता हो तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है हाई एक्यूरेसी और सेकंड होता है हाई अटेम्प्ट रेट. व्हेन आई टॉक अबाउट हाई एक्यूरेसी मतलब आपका क्वेश्चन सही भी हो रहा है और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं. तो हाउ डू आई क्रिएट अटेम्प्ट रेट एंड हाई एक्यूरेसी? सम पीपल टेंड टू इसको ओवर शैडो कर देते हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते अटेम्प्ट रेट कैसे बनाना है, सिर्फ ये एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं. आई विल टेल यू दैट accuracy is equally important to attempt rate. If you are not able to solve good number of questions, not able to attempt 25 questions, 30 questions out of 40, how will you make sure that you are getting that seat, right? So for that, make sure you are having high attempt rate. How to create high accuracy? Focus on conceptual clarity. Again, I am repeating this word. That is, you should be knowing the base. What is the base of that particular topic you are studying? रेशियोज पढ़ रहे हो तो रेशियोज होता क्या है? दो एक्चुअल वैल्यूज का रेशियोज, मतलब उनकी हम एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड का कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. सिमिलरली गोस फॉर परसेंटेजेस. 100 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट जो होता है वो 1% कहलाता है. तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए. उसके बाद आपको उनका एक इन डेप्थ आपने बेसिक्स पे बेस्ड कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए. अटेम्प्ट रेट के बारे में बात करूंगा मैं कि अटेम्प्ट रेट कैसे पैरेलली बनाए रखनी है. अच्छा, एक्यूरेसी के लिए एक और चीज दिक्कत होती है. हम इस हफ्ते जो चीज पढ़ते हैं स्टार्टिंग में वो टेंड टू फॉरगेट. और देखो सिंपल सी बात बताता हूं, अभी तो आप चीजें याद भी रख लोगे, बीच में जिनके बोर्ड्स हैं क्या वो याद रख पाएंगे? कि आप हर मॉक से पहले रिवीजन का कुछ थॉट प्रोसेस रखे हो. इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था फॉर्मूला बुक के बारे में, एंड दिस इज रियली वाइटल. ओके, एक फॉर्मूला बुक आपकी खुद की होनी चाहिए. फॉर्मूला बुक कैन इंक्लूड ऑल द थिंग्स, योर शॉर्ट ट्रिक्स or like what I say, or like formulas, any short tricks or any concepts, any notes can include like anything that relates you to any important topic, right? तो एक फॉर्मूला बुक बनाओ और खुद की बनाओ. किसी और के फॉर्मूले लिखने से अच्छा है कि खुद फॉर्मूले लिखोगे तो याद भी कर रहे हो. खुद फॉर्मूले के एक नोटबुक बनाओगे तो खुद का एक लिंक होता है ना कि मैंने ये फॉर्मूले के वक्त कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. तो ये फॉर्मूला बुक आप आपके साथ स्टार्टिंग से बना के चलो. इन 60 डेज ऑफ प्रिपरेशन में एक फॉर्मूला बुक आपकी जो बनी है ये आप हर मॉक के 1 घंटे पहले पढ़ोगे. आधा घंटा सिर्फ फॉर्मूला बुक पढ़ोगे तो जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी आइडेंटिटीज, जितने भी फॉर्मूलाज है, सब रिवाइज हो जाएंगे. आपकी फॉर्मूला बुक का रिवीजन हुआ, आप मॉक के लिए रेडी हो जाते हो. तो आप भूलते नहीं हो ना एटलीस्ट, वरना भूल गए, फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अगर कॉन्सेप्ट ही भूल गए, एलिगेशन फिक्सचर का कॉन्सेप्ट ही भूल गए कि अगर एडिंग प्योर है 2 महीने पहले पढ़ा था, अप्रैल में मॉक दे रहा हूं, तो वो नहीं होगा अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो. और ये खुद के होने चाहिए. अच्छी सी सुंदर सी नोटबुक बनाओ और उसमें अपने फॉर्मूलाज लिखो. नाउ ये हो गया एक्यूरेसी वाला पार्ट, ताकि आपको याद भी रहे, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी रहे. अटेम्प्ट रेट कैसे बढ़ाना है, मतलब पैरेलली अटेम्प्ट रेट कैसे डेवलप करना है. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. मतलब मैं जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पैरेलल अप्रोच सीखूं. मैं शॉर्टर अप्रोच के ऊपर अभी आगे और वीडियो में वही बात करने वाला हूँ कि कैसे शॉर्टर अप्रोच होती है. बट देन अटेम्प्ट रेट में शॉर्टर अप्रोच मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले या आपने की ऑप्शंस लगा के कर लिया, ये तो शॉर्ट ट्रिक्स हो गई. इनको ट्रिक्स कहते हैं, शॉर्टकट्स कहते हैं. वो तो होना ही चाहिए, बट उसके अलावा यू शुड हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन. This is I'll emphasize in the last part of the video. But then apart from shorter approach, what you need to do? Sectional test. You can have your own sectional test. मतलब एक टाइमर के अंदर आप सेक्शनल टेस्ट करो, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपको टाइम प्रेशर रहेगा और आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की आदत डालोगे. तो सेक्शनल टेस्ट दो, उससे आपका अटेम्प्ट रेट ठीक होगा. नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टर अप्रोच. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ शॉर्टर अप्रोच टू दी सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, जो शॉर्टर अप्रोच के बारे में एम्फसिस किया था मैंने कि क्या आपको पैरेलल अप्रोचेस पता होनी चाहिए, तो उसी पे बारे में है, ठीक है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो करंट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, द ओल्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज 1600. आई इंक्रीज्ड इट बाय
6.25% फाइंड द न्यू प्राइस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ताकि एग्जांपल के लिए समझ आ जाए। वैसे जनरल अप्रोच क्या होता है, ओल्ड प्लस 6.25% ऑफ ओल्ड विल गिव मी माई न्यू प्राइस, राइट, विल गिव मी माई न्यू प्राइस। ठीक है, अब ओल्ड कितना दिया हुआ है 1600 प्लस 6.25% ऑफ 1600, राइट। आप लिख सकते हैं ऐसा, हाँ आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ से डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे एक और 100 आ जाएगा। 625 को 25 से करते हैं, हाईएस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज 25 इंटू 25 625, ये हो जाएगा 4, ये 4, ठीक है। तो 425 इंटू 4 इज 100, आंसर आएगा 1700, ठीक है। ये जनरल अप्रोच है, दिस इज द जनरल अप्रोच, दिस इज द जनरल अप्रोच, ठीक है। अब व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट अप्रोच, क्या मैं एक्चुअली 3 स्टेप या इतना क्वेश्चन में कर सकता हूं, ठीक है। अगर कोई जनरल जो 95% ऑफ द बच्चे हैं वो यही करेंगे, बट हाउ अबाउट कि आप एक बार जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं उस पर एम्फसाइज करें, ठीक है। कैन यू डू यू नो you can write 6.25 as 12.5 by 2, right? If you'll divide 6.25 by 2, that will be 12.25 by 2. Can you write 12.25 as 25 by 2, right? तो मैं 1/2 बाहर लेता हूँ और 12.5 की जगह लिख दिया मैंने 25 by 2. And similarly, can you write 25 by 2 as 100 by 4? राइट और रॉन्ग, यू कैन यू राइट दिस एज, ठीक है। तो आप 6.25 को क्या लिख सकते हैं, 100 बाय 2 to 4 to 8, 8 to 16, 100 by 16, कैन यू राइट। हाँ, अगर आप 100 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको 100 by 16 ही आएगा, ठीक है, 100 by 16 ही आएगा। नाउ ओके, ऑल्सो है ना, ऑल्सो यू, अब आपको यहाँ पे 6.25% जब लिखना था तो आपने क्या किया था, 1600 प्लस 6.25% की जगह आपने लिख दिया 100 by 16, नीचे 100 था, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो कैन यू डायरेक्टली राइट हियर एज 1 by 16? यस, आई कैन राइट हियर एज 1 by 16 into 1600. Not only that, if you'll take the price common, okay, if you'll take the price common, you'll be left with 1 plus 1 upon 16, and that is nothing as 17 by 16 into the old price, right? Now anyone who, मतलब अभी मैंने आपको बहुत जल्दी बताया, बट अगर आपको पता होता कि आप 6.25% when I say increase, right, you can directly write there as 17 by 16 into number, right? You would have directly written as 17 by 16 into any number. तो instead when I asked, ठीक है, when I asked you कि how to find the increase when I increase the price by 6.25%, you would have directly multiplied by 17 by 16 and your answer would have been 1700. Instead you would have given the answer to me verbally, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको निकालने में तो टाइम लगा, तो इसको निकालना ही नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि 6.25% होता है 1 by 16 in percentage, that is decimal into fraction, and when I increase it by 1, that is 1 plus 16 upon 1 plus 1, okay, that is LCM लिया तो 17 by 16 आया, into 1600 किया तो आंसर आया 1700। और ये अब अगर आपको ये याद होता तो you would have directly written here। तो क्या होगा, दोनों लोग सही आंसर लाए, दोनों लोग आंसर सही लाए, बट ये वाला जो पर्सन होगा वो एक्चुअली यहाँ पर 10 to 20 सेकेंड सेव कर लेता है, और यही 10 to 20 सेकेंड्स आगे काम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको ज्यादा काम करना होता है। तो ये वाला डेवलप करने की कोशिश करो, थोड़ा सा थियोरी में ये स्टेप्स स्किम करने की कोशिश करो। स्टेप्स को स्किम करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, और कुछ चीजें दिमाग में ही, हेड में ही करके देखो। लास्ट टिप ऑफ द वीडियो इज that after solving questions always check the solution in the books as well as whatever sheets you are following, right? Why do I emphasize on that? Because whatever ACE IPM booklets we have, what we provide is a parallel approach in our sheets as well as our booklets, जिससे क्या होता है, बच्चे को पता होता है ये मेरा जनरल अप्रोच था, अगर मैं इसके बजाय ये वाला अप्रोच यूज किया होता तो मेरा आंसर जल्दी आ जाता। ये 17 by 16 को हमारे यहाँ पे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं ऑफ 6.25%। So when I said any student would have attended the lectures of percentages and profit and loss or something like that, right, would have directly multiplied the number with 1600 and would have got the answer verbally itself. So try to skip the step
And if you are not having that kind of strategy, please create one and always check the solutions of whatever questions you are doing, so that whatever the book writer or whatever the sheets you have may have a shorter solution that you can also use in your paper as well, and that will actually increase your attempt rate. Okay, thank you so much. Okay, and if you haven't checked out, lastly do subscribe our channel, because the next video is going to be about SAT preparation strategy, जिसमें मैं SAT preparation strategy के बारे में बताऊंगा, और इसमें हमारे कहीं और वीडियो आएंगे, वर्बल एबिलिटी के ऊपर भी आएगा, और नेक्स्ट ACE IPM में और क्या क्या चीज़ें हैं सबके ऊपर हम आपको और अच्छे से बताएंगे. थैंक यू सो मच.